Well, it's good to see you all here today. I'm very excited to be with और you. बहुत आनंदित हूँ आज की शाम को आप सबको देखते हुए, और मैं बहुत उत्तेजित हूँ कि मैं आपके बीच में पाया जाता हूँ। It's been a while since I've had a translator, so I will try to do this very well today, but we'll see. और ये बहुत दिन के बाद वो जो है अनुवादक के साथ प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो अच्छे से निभाए इस बात को। Like Pastor Simon said, I work with a lot of pastors. I work with people that are married, people that need help individually in counseling with their mind and their heart. और मैं जो है, जैसे पास्टर साइमन ने पहले ही बताया कि मैं सलाहकारी का कार्य करता हूँ पासबानों के बीच में और विवाहित लोगों के बीच में, और जिनको जो है अपने दिमागी तौर से जो सलाह की जरूरत होती है उनके लिए मैं सलाह देता हूँ। Today, I want to talk to you about some of the things that I've learned while I've been working with pastors and some of the things that they get stuck on and that we need to shift our perspective on. और आज मैं आपके साथ जो बात बांटूंगा वो ये है कि कैसे पासवान लोग कई बार कई जगह पे अटक जाते हैं और उन बातों में कैसे वो आगे बढ़े उस जगह से करके। So I was a pastor for 20 years and I worked in 3 different churches. And while I was there was something that I really needed to understand that I didn't always understand in ministry. और मैं जो है 3 कलीसियाओं में पासवान रह चुका हूँ, और जब मैं ऐसे पासवान था तो कुछ बातें मैंने सीखी हैं जो मुझे समझ में आई कि मुझे इसे जरूर जो है बात करनी है करके। I was putting ministry and God too close. Sometimes I was thinking that God was good because the ministry was going well. I was mixing the two. और मैंने जो है सेवकाई और परमेश्वर दोनों बातों को एक साथ जोड़ दिया और उन दोनों बातों को एक साथ रखा, क्योंकि मैंने समझा अगर सेवकाई अच्छी चल रही है तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न होंगे। One of the things that I really needed to understand was God is good all the time and he will never leave me or forsake me. That God, I need to have a relationship with God. Sometimes the ministry is going well. God is always good. और पर प्रभु हमेशा भला है और वो हमारे संग हमेशा बना रहता है। कई बार सेवकाई अच्छे से चल रही है लेकिन परमेश्वर तब भी हमारे साथ भला है। Sometimes when I didn't feel like the ministry was succeeding, I was getting confused that maybe God wasn't hearing my prayers or that he wasn't blessing me or that his hand of favor wasn't there anymore. और कई बार जब सेवकाई अच्छे से नहीं चल रही होती तो ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर मुझे आशीषित नहीं कर रहा है, प्रभु मेरी मेरी हर बात जो ठीक से नहीं चल रही है, मुझे क्यों परेशानी में मैं हूं करके सोचने पे मजबूर करता है। What I realized was my perspective was wrong because the two had become one, which meant that, and I still work with people that have an issue with this, that if I was hurt by the church or church people, I felt like God was hurting me. और कई बार लोग ये गलती आज भी मैं देखता हूँ पासवान लोगों के अंदर, और मेरे अंदर भी ये गलती थी कि मैंने सेवकाई और परमेश्वर दोनों को एक साथ जोड़ दिया। और कई बार हमें ऐसे लगता है कि हमारे चर्च के लोग अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो क्या प्रभु हमसे नाराज है, इसलिए हमारी कलीसिया में भी बुरा हो रहा है। What I really needed to figure out was that God is not hurting me, people were hurting me. God is always good. Sometimes ministry goes better, and sometimes it's just not going the way that I was hoping it would. और हमें ये बात जानना है कि परमेश्वर अलग है और सेवकाई अलग है। परमेश्वर हमेशा हमारे लिए भला है, लेकिन सेवकाई में क्या होता है, कई बार लोग अच्छे नहीं है तो कई बार हमारे साथ बुरा भी होता है, कभी अच्छा भी होता है। Some of the people that we work with in church and ministry are doing the same thing, that they feel like if they're hurt by us or by the church or by ministry, that God is no longer good, God is not for them, and maybe God did this. और हम सेवकाई में भी लोगों के जीवन में ऐसा देखते हैं, कई बार विश्वासी जब हम उनके साथ अच्छे नहीं होते या फिर कलीसिया में कोई उनके साथ अच्छा नहीं होता तो वो ये समझ जाते हैं कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, उसने मेरे साथ गलत किया है करके। It's very important for us as ministers to separate the two, that God is good and I need to be in relationship with him, and ministry, I need to do well and work well in ministry and honor God in everything that I do. और इसीलिए हमें इस बात को अच्छे से जानना है कि परमेश्वर अलग है,
सेवकाई अलग है। परमेश्वर हमेशा भला है और सेवकाई में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हमें सेवकाई में अच्छी मेहनत करनी है कि हम परमेश्वर के नाम को उसके द्वारा महिमा दे सके। Sometimes we need to help people that are in our ministry or in our church understand the same thing, that they need to separate God in their relationship with God and the church and ministry. और कई बार हमें अपनी सेवकाई में लोगों की मदद करनी चाहिए, उन्हें इस बात को समझाने के लिए कि वो जो सेवकाई है वो अलग है और परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो अलग है। This reminds me of a scripture in Romans chapter 12 verse 2. It says, go ahead and translate. हम देखेंगे रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसके दूसरे वचन को जो मुझे स्मरण दिलाता है यहाँ पर। Do not copy the behaviors or customs of this world, but allow God to transform you into a new person by changing the way that you think. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। So the important piece of that is if I allow God to transform me into a new person, sometimes the way to do that is by changing the way that I think. और परमेश्वर जो है मुझे नया बनाना चाहता है, वो कैसे? हमारे चाल चलन के बदल जाने के द्वारा। Sometimes our perspective is off. We have a certain perspective, but it needs to be a different way. और कई बार हमारा नजरिया अलग होता है, लेकिन वो नजरिया बदलने की जरूरत है, उसे दूसरी तरफ होना चाहिए। I want to take us to Philippians chapter 4 verse 8. And what Philippians chapter 4 verse 8 says is this. हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8वां वचन क्या कहता है। Fix your thoughts on what is true and honorable and right and pure and lovely and admirable. Think about things that are excellent and worthy of praise. फिलिपियंस 4 verse 8. और 4 अध्याय उसके 8वें वचन में हम देखते हैं कि इससे है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी है, जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। And it says that when we do this, that when we put this into practice, then the God of peace will be with us. और ये कहा गया है कि जब हम इन सब बातों को पालन किया करेंगे, तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। We need to make sure that our perspective about God is right. We need to make sure that our perspective about ministry is correct. और हमें सोचना, हमारा नजरिया परमेश्वर के प्रति ठीक होना चाहिए, हमारा नजरिया सेवकाई के प्रति ठीक होना चाहिए। Now I want to talk to you really quickly about what I think the purpose of our life is. और मैं बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहूंगा कि मैं जो समझता हूँ जीवन का जो लक्ष्य क्या है। Sometimes I hear people say, I'm worried that I will get to heaven and God will say, you didn't do what I sent you there to do. और कई बार लोग मुझसे कहते हैं वो बहुत चिंतित है, क्योंकि जब वो स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु शायद उनसे कहेगा कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, जैसा मैं चाहता था तुमने वैसे काम नहीं किया। They're worried that they will miss the will of God for their life and why they exist. और वो ये चिंता करते हैं कि वो परमेश्वर की जो लक्ष्य उनके जीवन के लिए उसको खो देंगे जब वो इस संसार में पाए जाते हैं। The way that I picture it is that we will all stand before God one of these days and he will say, well done, good and faithful servant. और जो तस्वीर मैं अपने सामने रखता हूँ वो ये है कि हम सब प्रभु के आगे खड़े होंगे और प्रभु कहेगा, धन्य यह विश्वास योग्य दास करके। Sometimes people think they will hear, well done, good and faithful servant, but you didn't do what I sent you there to do. कई बार लोग ये सोचते हैं कि ये होगा कि धन्य है वो जो परमेश्वर के विश्वास योग्य, लेकिन तुमने वो नहीं किया जो मैंने करने के लिए भेजा था। What I read in the Bible is that if God wants something done, he gets it done. और मैंने जो बाइबल में पढ़ा है कि परमेश्वर यदि चाहता है कि कुछ करवाना तो वो उसे जरूर करवाता है।
God can use a donkey to talk. God can raise a valley of dry bones to come back to life. And God says, if you don't worship me, I will cause the rocks to cry out. परमेश्वर ने गधे को बुलवाया, परमेश्वर ने सूखी हड्डियों की सेना तैयार करी, और परमेश्वर ने ये भी कहा वचन में कि यदि तुम आराधना नहीं करोगे तो ये पत्थर चिल्ला उठेंगे। So, what I now understand is if God wants something done, he gets it done. He doesn't need me to do it for him. और इसीलिए मेरी समझ ये है कि अगर परमेश्वर को कुछ करना है तो वो किसी भी रीति से करवा सकता है, उसको मेरी जरूरत नहीं है। So I actually believe that we will stand before God and we will hear this. I hope that we will hear this. और मैं इसलिए समझता हूँ कि हम प्रभु के आगे खड़े होंगे और हम इस बात को सुनेंगे। मैं आशा करता हूँ ऐसी कि हम इस बात को सुनेंगे। Well done, good and faithful servant. You became everything I created you to be. और धन्य है विश्वास योग्य दास, क्योंकि तू वो बना जिसे मैंने सब कुछ जो मैंने चाहा तू वैसा बना। And today I want to talk about two things that I think that means. और आज मैं दो बातों के बारे में बात करूंगा जिसका नजरिया जो है वो है। I believe that God has given us a certain personality, certain gift mixes, certain talents, and certain strengths. मैं मानता हूं कि परमेश्वर ने हमें कुछ नजरिए दिए हैं, कुछ दान दिए हैं, वरदान दिए हैं, और कुछ परमेश्वर के उपयोगी हमें पात्र उसने ठहराया है। And I think that it is our job to understand who he has created us to be and how he has put us together and what gifts to use and then use them very well. और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर ने हमें एक विश्वास योग्य दास बनाने के लिए कुछ योग्यताएं, कुछ वरदान, दान सब मिलाकर हमें बनाया, और हमारा कर्तव्य कि हम पता लगाए कि हमारे अंदर प्रभु ने कौन से गुणों और दान वरदानों को दिया है। Sometimes I wanted to be like somebody that I liked, somebody that did great ministry. I wanted to emulate what they were like instead of कई बार living my strengths. और कई बार जो है हम किसी दूसरे को देख के उसकी नकल करने लग जाते हैं। वो जैसे जी रहे हैं हमें वैसे जीना है, वो जैसे सेवकाई करते हैं हमें वैसे करना है। उन्हें अपना जो है एक सिद्धांत मान लेते हैं अपने आगे। I think we need to understand how he wired us. Some people are very heartfelt and love people, and some people are able to get a lot of great tasks done. और बहुत हमें अपने आप को समझना है। कुछ लोग जो है वो कम उस कार्य को करते निभाते हैं पूरा, कुछ लोग कई योजनाओं को पूरा करते जाते हैं। Sometimes we have different perspectives and we have different gift mixes, and how God wired us, we need to live that out. और कई बार हमारे अंदर कई वरदान या दान कार्य करते हैं, हम एक दूसरे से भिन्न है। परमेश्वर ने जैसे हमारी संरचना की है हम वैसे पाए जाते हैं। And I think the second thing that we're in becoming the person that God created us to be, the second thing is obedience to the word of God. और दूसरी बात जो मैं समझता हूँ कि जो परमेश्वर चाहता है हम बने, हमें अपने आप को बनाना है, तो वह परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारी होना। So we need to investigate the word of God, understand what he is asking us to do, and be obedient to the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में खोजना है और समझना है परमेश्वर हमसे क्या करवाना चाहता है, और उस वचन के लिए आज्ञाकारी होना है। Sometimes people don't look at the word of God, read it, and take what God wants us to live like. They just assume that they know how to do this better in their life. और कई बार क्या होता है, लोग पढ़ते हैं वचन को और वहां पे पता है परमेश्वर क्या चाहता है उनसे करने के लिए, लेकिन वो सोचते हैं कि इस वचन से भी बढ़कर अच्छी तरह से मैं खुद को जानता हूं करके। So if we need to spend time finding out why does God say what he says and how do I live this out, and we need to become absolutely obedient to it. हमें जो है इसीलिए पता करना है कि क्यों परमेश्वर इस बात को बोल रहा है, और हमें इस बात के लिए आज्ञाकारी क्यों होना है, और इसके द्वारा हमारे जीवन में कैसा होगा करके हमें पहले से ही जानना है प्रभु के बारे में। So if I am proud of how God made me and I am living my strengths in who he created me to be, and I'm obedient to his word, there is something powerful that happens there. और अगर मैं परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया ये जानूं, और मैं परमेश्वर के आज्ञाकारी हो जाऊं और परमेश्वर के वचन के आधार पर जीऊं, तो मैं सचमुच एक सामर्थी व्यक्ति बन जाऊंगा।
This is where ministry really happens. This is where integrity is. और इसी जगह पे जो सेवकाई होती है और इसी जगह को हम जो है खराई मानते हैं। So if I'm living out my strengths that God created me like, and I'm obedient to the word of God, I believe God is very pleased and saying, you are becoming everything I created you to be. और अगर मैं परमेश्वर के बल से जो है जी रहा हूँ और वचन के लिए आज्ञाकारी हो रहा हूँ और इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरा जीवन है, तो हम परमेश्वर की नजर में बिल्कुल परमेश्वर जैसा चाहता था उस पूरी आज्ञाओं को पूरा करके जी रहे हैं। And that's where I find that God gives great opportunity for those who are obedient and understand who they are. He gives them great opportunity for ministry and things to expand. और परमेश्वर ऐसे लोगों को महान मौके देता है अपनी सेवकाई के लिए और बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जब जानते हैं कि वो क्या परमेश्वर आज्ञाकारी परमेश्वर के लिए वो हो रहे हैं क्या करके। You see, it's not just one thing. If I am very proud of who I am, but I'm not obedient to the word of God, it doesn't work. And if I'm not proud of who I am, but I'm really obedient to the word of God, it also doesn't work. I need to live both of these out. और इन दोनों कार्यों को हमें जो है समांतरता में रखना है। अगर मैं परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी हूँ और परमेश्वर के हिसाब से नहीं जी रहा हूँ, या फिर मैं परमेश्वर के हिसाब से जी रहा हूँ, परमेश्वर के वचन के लिए आज्ञाकारी नहीं हूँ, तो इन दोनों बातों का समान रूप से होना जरूरी है। This is where I find that we find our calling. This is where I find we do better ministry. And this is where real integrity is. और इसी जगह पे जो है हमें अपनी बुलाहट का पता चलता है, इसी जगह पे हम जो प्रभु से और अधिक घनिष्ठ होते हैं, इसी जगह पे हमारी खराई का पता चलता है। I believe that God wants us confident and proud, but proud because He created us unique and He loves us. और हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम भरोसेमंद हो और हम सचमुच गर्व करें। गर्व किस बात में? कि प्रभु ने मुझे बनाया, मेरी सृष्टि की है और मैं बहुत ही बहुमूल्य हूँ। I believe that sometimes people don't need a new program, or they don't need certain things that can entertain them, but they need an example of a godly life lived. और कई बार पर लोगों को नए किसी कार्यक्रम की जरूरत नहीं है या नए उदाहरण की जरूरत नहीं है, लेकिन कई बार उन्हें जो है कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, इस बात को जानने की जरूरत है। When we're in situations where we don't always know what to do, if we will go back to the Word of God and we will operate in our gift, then we will always know what to do because we're obedient to the Word of God and able to do ministry with people. और कभी शायद हमारे जीवन में हमें पता न चले कि हमें क्या करना है इस परिस्थिति में, हमारे पास उत्तर नहीं है, तो हमेशा परमेश्वर के वचन की ओर देखें और परमेश्वर के वचन से सीख कर, और हम जब उसके आज्ञाकारी होंगे तो जरूर हम उस समस्या का समाधान लेकर आ पाएंगे। So I want to go back to Philippians chapter 4 verse 8 and what it says there. और मैं दोबारा देखना चाहूंगा फिलिपियो 4 उसके 8 में, और वहां पे क्या कहा गया है। Sometimes ministry is difficult and we can get overwhelmed, and sometimes we don't know exactly what to do. और कई बार सेवकाई कठिन हो जाती है और हम उससे बहुत ही निराश हो जाते हैं, लेकिन कई बार हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें। In that it says, fix your thoughts on what is true, honorable, and right. And if we just stay with those three, I think there's real power in there. और इसीलिए हम अपनी आंखें उस जगह पे प्रभु की ओर लगाएं और देखो उन्हीं को पालन किया करे, और शांति से श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। Sometimes a certain situation becomes overwhelming and we don't know what to do. So we need to practice what is true, honorable, and right. और कई बार जो है, जो सत्य है, जो आदरणीय है और जो उचित है, उन बातों को हमें जो है आध्यात्मिक रीति से देखना है। If I will start with God, this is a good place to start. अगर मुझे समझ आता है कि परमेश्वर चाहता है कि ये सही जगह है जहाँ पे मुझे अपनी सेवकाई शुरू करनी है, God is bigger than this situation. तो परमेश्वर जो है इस परिस्थिति से महान है। God is the Almighty and He is with me. और परमेश्वर सर्वसामर्थी है, वो मेरे साथ है। If I listen to God right now, He will give me answers. अगर मैं परमेश्वर को इस वक्त सुनूं तो वो मुझे उत्तर देगा।
Sometimes we need to start there and then get to ourselves. और कई बार हमें ऊपर यहाँ शुरू करना है और उसके बाद अपने आपे में आना है। Fixing my thoughts on what is true and honorable and right. अपनी सोच को सत्य, आदरणीय और उचित बातों पे अपनी सोच को लगाना है। God is God, and He is with me, and I can do all things through Christ who strengthens me. और परमेश्वर परमेश्वर है और वो मेरे साथ है और मुझे बल देने वाले मसीह के द्वारा मैं सब कुछ करने के लिए सामर्थी हूँ। He has equipped me for this moment, and He's going to bless me while I work through this. और जब मैं इसमें से कार्य करता हूँ तो वो मुझे पहले से ही सामर्थ देता है और इसमें से होकर गुजरने की योग्यता देता है। If I spend time thinking about this, God is going to give me an understanding that I can help others or work through this issue. और परमेश्वर, जब मैं इस बात को समझ रखता हूँ तो परमेश्वर मुझे इस परेशानी में से होकर गुजरने की और दूसरों को भी उसमें से लेकर जाने की वो क्षमता देता है। Then the next one, the third part, is now I need to think about the situation and solve for that situation. अब मुझे तीसरी बात जो है उस परिस्थिति को सोचना है, उस परिस्थिति का समाधान निकालना है। Many times people turn those around and they say, "Oh, I need to solve this situation. I think I can do it. Oh yeah, God's with me." और कई बार लेकिन लोग जो है उसके उल्टे ही करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे इस समस्या का समाधान करना है और हाँ, परमेश्वर मेरे साथ है। So we need to start with God, then us, and then the situation, and it will get much more clear. लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ शुरू करें और उसके बाद उसके साथ हम जुड़े रहें और उसके बाद परिस्थिति को देखें तो शायद उसका समाधान और आसान होगा। This is how to keep your mind right, fixed on the Lord, and solving the way that He would want us to solve and be honorable. और इसीलिए ये आपका सही तरीका होगा, अपनी सोच को परमेश्वर पे लगाएं और सोचें कि वो इस परिस्थिति को कैसे समाधान करेगा, उसके नजरिए से सोच के देखें। I came to find out in ministry, God is God no matter what my situation is. और मैं सेवकाई में इस बात को मैंने जाना कि परमेश्वर परमेश्वर है, चाहे मेरी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। God is not more God or more powerful because things are going well, or less powerful or less God because things aren't going well in my life. और परमेश्वर अधिक सामर्थी है, अधिक परमेश्वर है क्योंकि हमारे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, यानी तो हमारे साथ बुरा हो रहा है इसीलिए परमेश्वर कम सामर्थी है, कम छोटा परमेश्वर है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। God is the Almighty God, the everlasting God. He is always good no matter what I'm walking through. और परमेश्वर ही सर्वसामर्थी परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारे लिए सर्वव्यापी है और चाहे हमारी जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमेशा महान परमेश्वर है। So our purpose in life is to become everything that He created us to be, and then we can see what He brings around us in order to do. इसलिए हमारा नजरिया ये होना चाहिए कि जो भी परमेश्वर चाहता है हम उस नजरिए से देखें और उसके बाद उस समाधान को कैसे लेकर आए। The Bible tells us that we should take every opportunity that is right in front of us to do the work of the kingdom, and it flows from our relationship with God. और हम परमेश्वर के साथ के संबंध के द्वारा परमेश्वर के राज्य के लिए जो कार्य कर सकते हैं उसके लिए हर मौके का इस्तेमाल करें, उसके राज्य के लिए कार्य करने के लिए। So I want to urge you, get closer to God, listen to God, obey God, understand yourself better, and ministry will flow from that. और इसीलिए मैं आपसे जो विनती करूंगा कि परमेश्वर के साथ जुड़ जाइए, उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाइए, उसके लिए आज्ञाकारी बनिए, फिर सेवकाई अपने आप आपके जीवन से बहने लगेगी। Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your path. और परमेश्वर पे भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना ले और उसके सारे मार्गों में वो तेरी जो है अगुवाई करेगा। Praise the Lord. प्रभु के नाम की स्तुति हो।